condition of iman and health. Okay students, today is our lecture number 4 and lecture number is 4 from our workbook page number 29, 30, 31, 59, 60, 61 and 62. Okay students, the topic which we are going to discuss in our pages, these are adjective and guided writing. Adjective and guided writing. In guided writing, there are two further more topics which we are going to discuss. My father and my mother. Okay students, let's start with our adjective. What is adjective? Adjective tell us something about a person or a thing. Adjective tell us about a person or a thing. Okay students, adjectives are those words which describe about noun. Adjective इनको उर्दू में इस्म सिफ्त कहते हैं. इस्म सिफ्त क्या होता है? जो किसी इस्म की या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान करे. Adjectives tell us about something good or something bad about noun. Okay students, like for example, there is a pen in my hand. Okay, the pen is blue. The pen is blue. Every pen is called pen, but not every pen is blue. हर पेन जो है वो पेन ही कहलाएगा, लेकिन ब्लू नहीं. ब्लू क्या है? इसकी स्पेशलिटी. This is called adjective. Blue is adjective for the pen. Okay, this pen, like tall boy, beautiful flower, beautiful garden, fat man, a tall building. These are all adjectives. Okay students, now please open your books and learn about the adjectives. Adjectives, there is a definition of adjectives. You have to write the definition of adjective. Please open your books on page number 30 and write the definition of adjective. Adjective tell us something about person or a thing, as a fat cat, long snake. Okay students, add adjective to the following nouns like house, car, torch, pencil, apple, girl, palace, dog, book, star, bottle, dress. Okay, what type of adjectives we can add in front of these nouns? Like house, हाउस में भी ब्यूटीफुल हाउस भी आ सकता है, यहाँ पर बिग हाउस भी आ सकता है, स्मॉल हाउस भी आ सकता है. कार, फास्ट कार भी आ सकता है, स्लो कार भी आ सकता है. टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉर्च भी हो सकता है, ब्राइट टॉर्च भी हो सकता है. पेंसिल, न्यू पेंसिल भी हो सकती है, रेड पेंसिल भी हो सकती है, ब्लू पेंसिल भी हो सकती है, ब्लैक पेंसिल भी हो सकती है. एप्पल, रेड एप्पल भी हो सकता है, हेल्दी एप्पल भी हो सकता है, और इसके अलावा ग्रीन एप्पल भी हम लिख सकते हैं. देन गर्ल, नाइस गर्ल, गुड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल गर्ल, फैट गर्ल, वट एवर वी वांट टू राइट. पैलेस, ग्रैंड पैलेस, ब्यूटीफुल पैलेस, ग्रेट पैलेस. डॉग, ब्लैक डॉग, वाइट डॉग, ग्रे डॉग, वट एवर यू वांट टू राइट. book, good book, interesting book, and you can write the option of your own choice. Star, shining star, big star, bottle, soft bottle, hard bottle, whatever you want to write. Dress, beautiful dress, pretty dress, night dress, and nice dress also. There are some missing words, and you have to complete these words, like shirt cover with dirt. Shirt cover with dirt. अब जो शर्ट है जो डर्ट से कवर्ड है तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी डर्टी शर्ट. अ शर्ट कवर्ड विद डर्ट, तो हम उसको क्या कहेंगे? डर्टी शर्ट. वो शर्ट जिसके ऊपर डर्ट लगी होगी तो वो क्या कहलाएगी? डर्टी शर्ट. When the rain pours, it is. जब बारिश होती है तो वो क्या कहलाता है? A rainy day. क्या कहलाता है? Rainy day. A rainy day. The boy
who has lots of luck. A boy who has a lot of luck, that is called a lucky boy. That is called a lucky boy. A food which has a lot of spice. क्या होगा ये? A food which have a lot of spice, that is called spicy food. A path covered with stones. A path covered with stones is called stony path. Hair which has curls called definitely curly hairs. Okay students, your page number 30 is complete. Okay students, right now I think your concept is clear about adjective. So on page number 31 you have to match the picture with the words. यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं और वर्ड्स भी दिए हुए हैं. आप लोगों ने क्या करना है, जो वर्ड आपको पिक्चर के साथ ज़्यादा सूटेबल लग रहा है आपने उसको पेंसिल से मैच करना है. जैसा कि यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर, पेज के ऊपर कार बनी हुई है, तो कार क्या हो सकती है? फास्ट हो सकती है. तो यहाँ पे जो वर्ड अगर फास्ट है तो आपने उसको ढूंढ के कार के साथ मैच करना है. आगे कैंडी है या टॉफ़ी है तो वो स्वीट होगी. फ्लावर जो है उसकी वो आपको क्या उसकी स्पेशलिटी लगती है? वो प्रिटी भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है. तो जो वर्ड आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है उस पिक्चर के साथ आपने उसको मैच करना है. दिस इज़ आवर पेज नंबर 31. ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था गाइडेड राइटिंग. बच्चों, गाइडेड राइटिंग क्या होता है? व्हाट इज़ गाइडेड राइटिंग? गाइडेड राइटिंग मीन्स कि आप लोगों ने फैक्ट्स को कलेक्ट करके बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी है. क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग इज़ ओनली आउटपुट ऑफ योर ओन क्रिएशन. आप अपने माइंड के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशंस को शामिल कर सकते हैं. लेकिन गाइडेड राइटिंग में आप लोगों ने क्या करना है? यू हैव टू राइट ओनली द फैक्ट्स. आप लोगों ने सिर्फ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको लिख देनी है एक पैराग्राफ की सूरत में या पॉइंट्स की सूरत में. दिस इज़ कॉल्ड गाइडेड राइटिंग. और यहाँ पर आपके पास गाइडेड राइटिंग के लिए दो टॉपिक हैं, माई फादर एंड माई मदर. आप लोगों ने पहले माई फादर के बारे में लिखना है और फिर मदर के बारे में. प्लीज़ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 59. यहाँ पर आपको एक जो है वर्कशीट बनी हुई है जिसमें आपने अपने पापा की जो है पिक्चर लगानी है, अपने फादर की आपने बॉक्स में पिक लगानी है और इसके बाद आपने लिखना है माई फादर्स नेम इज़. माई फादर्स नेम इज़. आपने अपने वालिद का या अपने फादर का नेम लिखना है. माई फादर इज़ ईयर्स ओल्ड. आपके पापा से पूछकर कि उनकी एज कितनी है आपने वो ईयर लिखना है. माई फादर हैज़ डैश हेयर. वट एवर द कलर ऑफ योर फादर, मे बी ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, वट एवर द कलर. ओके, यहाँ पर आपने कलर लिखना है. माई फादर्स आइज़ आर. फिर आपके पापा की आइज़ कैसी हैं, उनका कलर क्या है? ब्राउन है, ब्लैक है, हेज़ल है, ब्लू है, जो कुछ भी है वो आपने यहाँ पर लिखना है. हिज फेवरेट थिंग टू डू. उनको क्या करना पसंद है, उनकी जो है फेवरेट हॉबी भी लिख सकते हैं आप इसमें, या वो बात जो वो कॉन्सिस्टेंटली करते हैं या वो करना पसंद करते हैं आपने वो लिखना है. माई फादर फेवरेट थिंग इज़ टू डू कुकिंग, मे बी प्लेइंग विद चिल्ड्रन, प्लेइंग विद अस, कुछ भी आप लिख सकते हैं. फिर यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं, वहाँ पर आपने लिखने हैं आपके फादर की फेवरेट फूड, जो कुछ भी आप लिखना चाहें. यू कैन राइट डिज़र्ट. डिज़र्ट मीन मीठा. उन्हें मीठे में क्या पसंद है वो लिख लें. मे बी आइसक्रीम, मे बी कस्टर्ड, मे बी द फ्रूट. फिर इसके बाद कलर. आपके पापा को कौन सा कलर पसंद है? यू हैव टू राइट इन अ सर्कल. एंड देन स्पोर्ट, विच इज़ योर फादर्स फेवरेट स्पोर्ट. यू हैव टू राइट हिज फेवरेट स्पोर्ट. एंड देन प्लेस. अ प्लेस योर फादर्स लाइक द मोस्ट, वो आपने यहाँ पर लिखनी है. ठीक है जी. फिर आप माई फादर हेल्प्स मी व्हेन. आपके पापा आपकी हेल्प कब करते हैं आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. व्हेन आई डू माई होमवर्क, मे बी. एंड देन आई लव माई फादर बिकॉज. आप अपने पापा से क्यों प्यार करते हैं, आप अपने फादर से क्यों प्यार करते हैं? बिकॉज वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. ही हेल्प्स मी, ही लव्स मी, बिकॉज ही इज़ माई फादर, दैट्स वाई आई लव हिम. इफ़ आई कुड गिव एनी थिंग टू माई फादर इन द वर्ल्ड. अब आप क्या देना चाहते हैं? ठीक है. इफ़ आई कुड गिव एनी थिंग टू माई फादर इट वुड बी. तो वो क्या हो सकती है? हैप्पीनेस,
मे बी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो आप अपने फादर को देना चाहते हैं। पेज नंबर 60 पर आप लोगों ने इस सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन्स की फॉर्म में लिखना है। पहले आपने बताना है माई फादर नेम इज़ एंड हाउ मेनी ईयर्स ही इज़ ओल्ड and his hair color, his eye color, and his favorite color, and he likes to do, और ही इज़ वेरी केयरिंग, जो उनकी करेक्टरिस्टिक है वो लिखनी है, कौन सी फूड उनको पसंद है, और आप जो हैं उनके लिए क्या करना चाहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रीवियस पेज के ऊपर कलेक्ट की है, अब आपने उसको लाइंस की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में नेक्स्ट पेज पर लिख देना है। सेम एज विद गाइडेड राइटिंग माई मदर। अब आपने माई मदर के बारे में भी वही कुछ लिखना है जो आपने माई फादर के बारे में लिखा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, द नेम, डेफिनेटली आपकी मदर का नेम चेंज होगा, और आपकी मदर कितने ईयर्स की हैं वो भी आप उनसे पूछ के लिखेंगे। फिर उसके बाद माई मदर हैज़ द कलर ऑफ योर मदर्स हेयर एंड द कलर ऑफ योर मदर्स आई एंड फेवरेट थिंग शी लाइक टू डू, द मदर्स फेवरेट, ऑल्सो यू हैव टू फिल द सर्कल्स लाइक फूड, डिजर्ट, कलर, स्पोर्ट एंड प्लेस। माई मदर हेल्प्स मी व्हेन आई डू माई होमवर्क एंड आई लव माई मदर बिकॉज शी केयर्स मी अलॉट। फिर आप अपनी मदर के लिए क्या कर सकते हैं, एंड ऑन पेज नंबर 62 यू हैव ऑल्सो राइट ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, योर पेज नंबर 62 इज़ कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने अपनी असेसमेंट शीट जो है वो इस वीडियो को देखते हुए फॉलो करनी है। लाइक अगर आपके असेसमेंट में पूछा गया है कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज़ डेफिनेटली अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो आप लोग जो हैं इसका आंसर दे सकते हैं, एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, जैसा कि अब बिग हाउस है या ब्लू पेन है, तो बिग क्या होगा, बिग डेफिनेटली उसके लिए एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए होंगे जिसमें आपने अपने माइंड से जो है वो सोचकर वो अप्रोप्रिएट आंसर को जो है सर्कल करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, आवर लेक्चर नंबर इज़ कंप्लीट राइट नाउ। प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।